A very good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed chapter number 10 financial market. In this chapter, we already discussed the important topic of this chapter, that is a Security and Exchange Board of India. You know very well, the Security Exchange Board of India was established by Government of India on 12th April 1988 and it got statutory status on 13 January 1992. Its main function is to systemize and organize the security market. In the last video, we also discussed what are the basic purpose of the establishment of the SEBI, like remove of various malpractices occurred on the stock exchange, like price rigging, insider trading, unofficial private placement, as well as we discussed what are the role of the SEBI, and as well as we discussed objective of SEBI. In the last video, we already discussed the three important function of SEBI. There are basically three function of the SEBI. That is, number one is a regulatory function, which are related to the rules and regulation of the organization, which are related to the rules and regulation of the stock exchange, as well as we discussed a development function. Development function talk about the and think about the development of the stock exchange, how we will increase the capacity of the stock exchange, as well as the increase in the performance of the intermediaries. And the number third and important function of the SEBI, that is a protective function. Protective functions talks and work on the protection of the interest of the investors as well as the potential investors. It means there are basically three important functions of the SEBI: development function, regulatory function, and protective function. Due to the regulatory and protective function, Security and Exchange Board of India is also known as the watchdog of security market, watchdog of the secondary market. So today we will move to the next topic of today's videos, that is the organizational structure of SEBI, यानी कि SEBI का organizational structure कैसा होता है. So let's we discuss this topic. SEBI has decided its activity into the 5 operational departments. यानी SEBI का जो पूरा operational departments होता है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, each headed by an executive director, और हर डिपार्टमेंट का एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन मुंबई. सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, विथ रीजनल ऑफिस एट कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली. और उसके 3 रीजनेबल ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस हैं. दैट इज़ अ रीजनल ऑफिस को बोलते हैं क्षेत्रीय कार्यालय. जो मुख्य कार्यालय यानी द हेड ऑफिस विच इज़ नोन एज द विच इज़ लोकेटेड एट मुंबई, एंड रीजनेबल ऑफिस दैट इज़ अ क्षेत्रीय कार्यालय जो हर रीजन को हैंडल करता है. दैट्स कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली. SEBI has also formed 2 advisory committee. SEBI की 2 advisory committee होती हैं जो SEBI को टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एडवाइस देती रहती है कि उसमें जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, और जो चीज़ें और अच्छे से पॉलिश होनी चाहिए, जो चीज़ें और इंक्रीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में डे टू डे इन्फॉर्म करता है. जिसमें पहली कमेटी का नाम है द प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी. प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी क्या करता है? प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड अपनी एडवाइस प्रेजेंट करता है, एज वेल एज द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी. दीज कमेटी कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट प्लेयर्स एंड एसोसिएशन रिकॉग्नाइज बाय द SEBI. इट मीन्स इस पूरी कमेटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के लोग बैठते हैं या कंपनी से रिलेटेड कोई बंदा बैठता है. इस कमेटी में चाहे वो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी हो या फिर सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी हो, इन दोनों कमिटीज़ में इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, मार्केट प्लेस मतलब सेलर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, एज वेल एज SEBI के एसोसिएशंस के भी कुछ बंदे वहाँ पे उस कमेटी में प्रेजेंट होते हैं या उस कमेटी को बनाते हैं. यानी जब भी SEBI अपनी कमेटी बनाती है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड हो चाहे सेकेंडरी की मार्केट की एडवाइजरी कमेटी हो, दोनों कमेटी में इन्वेस्टर्स, मार्केट प्लेयर्स एज वेल एज एसोसिएशंस रिकॉग्नाइज बाय द SEBI, इन तीनों के मेंबर्स होते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटीज़ आर, यानी इनको इन कमिटीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है?
द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एडवाइस सेबी ऑन मैटर रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, यानी वो टाइम टू टाइम पे सेबी को एडवाइस करें कि इंटरमीडियरीज के लिए जो रेगुलेशंस हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। नंबर सेकेंड, टू एडवाइस सेबी ऑन मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी मार्केट, यानी वो सेबी को टाइम टू टाइम एडवाइस करें कि हम कैसे अपने प्राइमरी मार्केट को और भी डेवलप कर सकते हैं। नंबर थर्ड, टू एडवाइस सेबी ऑन मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इट मीन्स इन कमेटी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेबी को टाइम टू टाइम एडवाइस करें कि हम सेकेंडरी मार्केट को और कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसमें और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे एप्लीकेबल करा सकते हैं। देखिए, रूल्स बनते हैं बट रूल्स का कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होता है जिसको लोग मिसयूज़ करके कहीं ना कहीं मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर देते हैं, इनडायरेक्टली वायलेट करते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में इन सारे ड्रॉबैक्स को फाइंड आउट करना, इन सारी चीज़ लूप्स होल्स को फाइंड आउट करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी एज वेल एज टू द secondary market advisory committee. The fourth important objective of these committee that to advise SEBI on disclosure requirement for companies, यानी जो कंपनीज अपने शेयर्स को ट्रेड करा रही है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उन सब के लिए एडवाइस ये जानकारियाँ जो भी वो अपनी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं टू द इन्वेस्टर्स, उसके बारे में भी एडवाइस करते रहना। यानी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सेबी को ये एडवाइस करे, ये बताए कि कंपनीज़ को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्लोज करनी चाहिए। नंबर फिफ्थ, टू एडवाइस फॉर चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क टू इंट्रोड्यूस सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइमरी मार्केट, यानी कि ये सारी कमिटीज़ ये इसको लेकर भी एडवाइस करें कि प्राइमरी मार्केट में किस तरह के लीगल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि जो प्राइमरी मार्केट का जो पूरा एज है, जो प्राइमरी मार्केट का जो पूरा वर्क है वो सिंप्लीफाई हो और ट्रांसपेरेंट हो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो काम थोड़ा सा रिजिड है, जो काम बहुत ही लंबा है, लेंदी है, उसको शॉर्ट किया जाए। ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब है चाहे वो सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो परचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ हो, सबके लिए सेम ट्रांसपेरेंट चैनल हो ताकि सब लोग एक साथ एक लेवल पर इक्वलेंट होकर ट्रांजेक्शन्स को कर सकें, किसी के साथ का कोई तरह का कोई बाइसनेस ना हो। ये इस तरह की चीज़ें भी कमेटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यानी कमेटी का मेनली काम क्या है? कमेटी का मेन काम ये है, कुछ पॉइंट आउट मैं पहले नोट डाउन करा देता, फिर उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूँगा। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी जो है वो पूरे 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में डिवाइड है, जिसमें से हर डिपार्टमेंट के अपने अपने के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। इसकी हेड ऑफिस है मुंबई, रीजनल ऑफिस है कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली, और इसकी 2 कमेटी होती है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एडवाइज SEBI on the matter related to the primary market, and the secondary market advisory committee advise to the SEBI on matter related to the regulation of the secondary market. यानी बेसिकली SEBI अपना 3 मेन फंक्शन, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटरी फंक्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट करें ताकि प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे, उसका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होता रहे और उसमें जो रिलेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। सो द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। The next topic of this chapter, that is a dematerialization of security. You know, in the last previous video we already discussed the trading and settlement procedure on a stock exchange, कि हम उस स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। Dematerialization is the process by which the physical form of security are converted into electronic form. When the share are converted into electronic form, they are held in a demat account. Generally, you can see that dematerialization of security means कि जब भी आपको कोई भी सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में ना मिलकर बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है, या वो सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके किस में हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, विच इज़ नोन एज द डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जब आप 10th पास किए होंगे, 11th पास किए होंगे, तो आपको एक स्कूल की तरफ से या जिस भी बोर्ड से आपने और स्कूल
एग्ज़ाम्स पास किए होंगे उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट्स आपको मिले होंगे। सपोज ये सर्टिफिकेट्स आपको मिला, सपोज ये सर्टिफिकेट आपको मिला जिसमें लिखा है कि ये आपका नाम है, इस पर आपने इतने इतने मार्क्स पाए हैं और आप इस डिवीज़न में पास हो गए हैं, उसमें सारे सील वील लगी हुई है। दिस इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी सिक्योरिटी या फिजिकल फॉर्म ऑफ द योर डिग्री। उसी तरह से इन द पास्ट जब डीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब आप किसी भी कंपनी से कोई भी सिक्योरिटी परचेस करते थे तो आपको एक फिजिकल फॉर्म मिलता था सिक्योरिटी का। आप LIC करा लो, LIC पे आपको एक LIC का बॉन्ड मिलता है, एक बड़ा सा बॉन्ड होता है। अब बेसिकली क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया। यू कैन सी दैट in 21st century you feel that कि all the things can be easily done by the online. So due to this changes, स्टॉक एक्सचेंज में भी एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश की गई। वो चेंजेस ये है कि वी adopted a demetralization of security. Demetralization of security means it is a process in which we digitalize द फिज़िकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। यानी जो सिक्योरिटीज़ हमें फिज़िकल फॉर्म में मिलती थी, जिस पे लिखा होता था कि ये मेरा नाम है, हमने इतनी सिक्योरिटी परचेस की, वो एक डिजिटल फॉर्म ना होकर बल्कि वो मेरे अकाउंट में रहेगा। जैसे आप अपनी डिग्रीज मिलती थी आपको, अब आपने उसको क्या कर लिया, ऑनलाइन रख लिया, यानी वो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल रहेगी। कोई अगर वेरिफिकेशन के लिए चेक करना चाहे तो आप कह दो कि मेरी डिग्री में मेरा ये नाम है, मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो उसको डिजिटली उसको चेक कर सकता है। सो वही चीज़ें हैं। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी मीन्स जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आपको फिजिकल फॉर्म में ना मिलकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है, और ये जो सिक्योरिटीज़ है वो आपके डीमैट अकाउंट में अटैच रहती है। डीमैट अकाउंट मीन्स व्हाट, यू नो वेरी वेल कि जब भी हम ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर करते हैं, यानी हम कोई भी सिक्योरिटीज़ को परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट, एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना पड़ता है विद द बैंक, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो लेट्स वी डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डीमेटलाइजेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डीमेटलाइजेशन? When an investor wants to convert his share from physical form into electronic form, he has to go through the following procedure. यानी जब भी कोई इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो अपने शेयर को फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करा दे, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सपोज आपके पास फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ है, बट यू वांट टू कन्वर्ट देयर फिजिकल सिक्योरिटी इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी, ही हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर। उसे इन सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसीजर्स क्या क्या है, वन बाई वन। द फर्स्ट, अ डीमैट अकाउंट इज ओपन विद द डिपॉजिटरी, यानी आप अपने डिपॉजिटरी के साथ, मीडिएटर्स के साथ जाके डीमैट अकाउंट ओपन करिए। फॉर दिस ही अप्रोचेज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब वो आपके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अप्रोच करेगा। व्हेन ही फिल्स इन अ डीमैट अकाउंट एंड सबमिट द रिक्वायरमेंट, यानी वो आपसे डीमैट फॉर्म भरवाएगा। जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो, वैसे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप कराएगा, उसमें आपसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेगा और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे इनक्लोज करेगा। बेसिकली यही है, ठीक। Number second step is then he submit his certificate to the depository participant. उसके बाद वो क्या करेगा कि वो सबमिट वो सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो किसको सबमिट करेगा, टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलॉन्ग विद द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटीज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, उसमें आप जो भी डीमैट अकाउंट है उसका फॉर्म और जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठाकर दोगे। किसको दोगे, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो। द रजिस्ट्रार देन कन्फर्म द रिक्वेस्ट एंड डीमेटलाइज अकाउंट विच विद द शेयर सबमिटेड बाय हिम। यानी जो आपने फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी दी है, रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा कि ये सही इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। फिर वो फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी आपसे लेकर आपका नाम रजिस्टर्ड कर देगा, और आप जब अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा कि आपके डीमैट अकाउंट के साथ आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसकी इस प्राइस पे आपने शेयर परचेस किया था, उसका प्रेजेंट प्राइस क्या है ये भी गिवन रहेगा। ये भी बात याद रखिएगा। नंबर 4, द अकाउंट डज इज क्रिएटेड विद द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, अकाउंट में आपके नंबर्स and amount of the share will be clearly given. And number 5, now the investor can with the help of the broker and DP, the depository participant, operate his account by selling or buying the share and other securities. यानी कि वो उस डीमैट अकाउंट के हेल्प से, उस डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़ के हेल्प से और ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से वो फ्यूचर में या प्रेजेंटली अपने शेयर्स को खरीद सकता है और एडिशनल शेयर्स परचेस कर सकता है और अदर सिक्योरिटीज़ भी परचेस कर सकता है। तो दे आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स
converted the physical form of the security into the electronic form of the securities. Okay, so it is a very basic and behavioral concept. Now we will move to the next topic of this chapter, and it is the last topic of this chapter, so please be attentive and listen carefully. You know very well, there are various types of the financial market. There are basically two types of the financial market: money market and capital market. And capital market further classified into two markets: the primary market and secondary market. And secondary market is a market which is also known as the stock market and or stock exchange. In this market, security are not directly sold or issued by the company to investor, but is sold by existing investor to the other investor. So before the conclusion of this chapter, I want to express and I want to share some of the important stock exchange of India in front of you. यानी कि इस चैप्टर को इन करने से पहले अगर मैं आपको कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नाम या उनके इंट्रोडक्शन ना दूं तो शायद आपको स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एकदम क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंड है. When we are talking about this chapter, so you can feel that we are starting the journey from the introduction of the financial market. Financial market is a market where we create, exchange the financial assets, जहाँ पे हम financial assets को create करते हैं और उसको exchange करते हैं. Financial assets mean the share, debenture and other kind of short-term securities. And when we are talking about the financial market, so there are basically two types of the financial market. There's a primary market and capital market and money market. Money market is a market for the short term funds, जहाँ हम short term funds के लिए business करते हैं, and whose period of the maturity is up to 1 year, जहाँ पे maturity period जो होती है वो 1 साल की होती है. तो और मनी मार्केट के अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा अरेंज करना है, यानी फाइनेंस करना हो चाहे इन्वेस्ट करना हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, दे आर बेसिकली टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू द FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दैट इज द एक्विजिशन ऑफ फंड, नंबर सेकंड इज द एक्विजिशन ऑफ फंड, नंबर 2 इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स. सो चाहे फंड को अरेंज करना हो चाहे वो फंड को इन्वेस्ट करना हो, उसको यूज़ करना हो, सो इसके लिए प्राइमरी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों ही आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है. प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट की बात करें तो वहाँ आप शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए पैसा इन्वेस्ट या रेस कर सकते हो. उसके लिए कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक अ ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड commercial bill. As well as when we are talking about the capital market, the capital market is a market for medium and long term funds. These market facilitate the institutional arrangement through which long term funds, both debt and equity, are raised and invested. And there are basically two types of the capital market: money market, primary market and the secondary market. In the primary market, we use a different kind of the method of flotation, like offer through prospectus, offer for sale, private placement, right issue and e-IPOs. And when we are talking about the stock exchange, the stock exchange is a market where we exchange the securities for the second time. यानी कि यहाँ पे हम लोग जो सिक्योरिटी इशू करते हैं वो ऑलरेडी पहले इशू हो चुकी होती है, यानी ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ विच आर ऑलरेडी इशूड इन द प्राइमरी मार्केट, उसको अगर हम फर्दरली उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, उसे फर्दरली हमें मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम लोग स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ करते हैं. एंड यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स हु आर डूइंग देयर बिजनेस, डूइंग देयर प्रोफेशंस on the stock exchange, like a broker, jobbers and bulls, bear and stags. As well as we also discussed the dematerialization of securities and सारे स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज और इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है, जो पूरा रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर है? सेबी के ऊपर है. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कहीं हर चीज़ें डिस्कस की, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स की बात हो, चाहे वो मनी मार्केट की बात हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट की बात हो, चाहे वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट के टाइप्स की बात हो,
चाहे वो प्राइमरी मार्केट की बात हो, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट की यानी स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने वाले एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो at the end of this chapter, if we do not have a knowledge about this some of the important stock exchange which are established in our India, so शायद ये knowledge कहीं ना कहीं incomplete रहेगा. So at the end of this chapter I want to share some of the brief introduction about the स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया. सो वीडियो के एंड में मैं आपके सामने कुछ स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो लेट्स वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर entrance examination. So let's we discuss it. The first stock exchange, when we're talking about the stock exchange, the first very popular stock exchange is the National Stock Exchange of India, that is NSEI. The National Stock Exchange is the largest, most modern, technology-driven exchange incorporated in 1992 and recognized as stock exchange in April 1993. यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, सबसे पहली बात है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ा, सबसे मॉडर्न और सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यूज़ करने, जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड वाला स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया गया था ऑन अप्रैल 1993. यू नो कि 1988 में सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड 1988 में हुई थी और 1992 में सेबी को लीगल इस्टेब्लिशमेंट मिला था. तो इसका इनकॉर्पोरेशन 1992 में हुआ, बट एक साल बाद यानी सेबी के इस्टेब्लिशमेंट के एक साल बाद इसे लीगल स्टेटस मिला एज अ स्टॉक एक्सचेंज. It was set up by leading financial institution, banks, insurance company and other financial intermediaries. ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसके जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, उनसे मिलकर बनता है. इट्स बोर्ड comprises of senior executive from promoter, institution and eminent professionals. Okay, so what are the objective of the National Stock Exchange? So there are few important objective of the National Stock Exchange. The first one is establish a national wide trading facility for all types of security. यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग फैसिलिटी हर तरह की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करता है. दूसरा, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे देश में सबको इक्वल एक्सेस देता है इन्वेस्टर्स को कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें किसी का जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. Next one is providing a fair, efficient and transparent security market. जो सिक्योरिटी मार्केट है उसे एक फेयर व्यू देना, एफिशिएंट व्यू देना एंड ट्रांसपेरेंट वे देना भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4 इज इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक्स इंक्रीज सेटलमेंट्स. यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो सेटलमेंट साइकिल है जनरली वो लंबी ना हो. जैसे जनरली जो सेटलमेंट साइकिल होती है वो T+2, यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उसके 2 दिन के अंदर पेमेंट हो जाए और शेयर की डिलीवरी हो जाए. शेयर की डिलीवरी मतलब मैंने परचेस किया शेयर को, वो शेयर मेरे नाम पे हो जाए और जिसको मुझे पेमेंट करना था उस तक पेमेंट भी पहुँच जाए. एज वेल एज द मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्क्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज के बेंच मार्क्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाए. सो इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट very popular stock exchange, that is the National Stock Exchange. Next, the second important stock exchange, the over the counter exchange of India. Over the counter exchange of India, it is the second important stock exchange of India. The OTCEI, over the counter exchange of India, is a company incorporated under the Companies Act 1956. जनरली एक कंपनी है जो 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग फंड. यानी ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो मीडियम कंपनीज को और छोटी कंपनीज को कैपिटल मार्केट से फंड अरेंज करने के लिए सर्विसेज देती है. इट प्रोवाइड्स एन इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एवेन्यू फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट. It provides a fully electronic single window and transparent system for security exchange.
यानी इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सारी सुविधाएं हैं। सिंगल विंडो है, यानी एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन्स को प्लेस किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट स्कीम फॉर सिस्टम फॉर द सिक्योरिटी एक्सचेंज, यानी अगर आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज करना है उसके लिए पूरा ट्रांसपेरेंट व्यू है, किस प्रकार का कोई बाइसनेस या कोई चीज़ें आपसे छुपाई नहीं जाती। बेसिकली इट इज़ प्लेस वेयर बायर्स एंड सीक सेलर्स एंड वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल एंड परचेज सिक्योरिटी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ओवर द काउंटर ऑफ एक्शन ऑफ इंडिया में, कि जब यहाँ पे सेलर एंड बायर आपस में मिलते हैं और किसी भी सिक्योरिटीज़ को खरीदने या सेल या परचेस करने के लिए आपस में मिलते हैं, तो कंडीशंस, टर्म्स एंड प्राइस को लेकर निगोशिएशंस की भी संभावनाएं रहती हैं। इन द OTC यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अ बायर एंड सेलर walks on its counter, taps on the computer screen, find codes and attempts to finalize a deal. Thus there is a no fixed geographical area for its operation. यानी कि जनरली इसके लिए कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है, फिक्स्ड एरिया नहीं है कि यहाँ बैठ के ही ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का काम हो रहा है। नहीं, अगर बायर एंड सेलर एक कह सकते हो ना, एक पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप घर बैठ के या कहीं भी रेस्टोरेंट में बैठ के आप उसकी साइट ओपन करिए, आपको कोई सिक्योरिटीज़ या शेयर परचेस करना है, आप बैठ के आराम से उस सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स को परचेस कर लीजिए। यानी इस पूरे ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का कोई भी जियोग्राफिकल एरिया नहीं है कि कहाँ से इसका काम होता है। प्रोवाइडिंग अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ इन ईजी एंड इकोनॉमिकल वे, यानी आप घर बैठ के आराम से सिक्योरिटीज़ को आराम से खरीद एंड बेच सकते हैं। हाउ वेदर EOTC हैज नाउ बीन विड्रॉन, ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ने अभी इस समय विड्रॉन कर लिया है, यानी अभी प्रेजेंटली वो वर्किंग में नहीं है। द नेक्स्ट important and very oldest stock exchange of India, that is a Bombay Stock Exchange Limited. ये लाइन याद रखिएगा, इट इज़ अ फर्स्ट एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट अस डिस्कस इट। Bombay Stock Exchange was established in 1875 as Asia's first stock exchange. It provides a strong base for raising capital, thus facilitating the growth of corporate sector. Initially established as the Native Share Stock Brokers Association in 1875, it was granted permanent recognition the Security Contract Act 1956. यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जो कंपनियां होती हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ईजिली फंड अरेंज कर सकती है और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं। जनरली 1875 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की तरह हुआ था, यानी 1875 में इसका नाम था नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। बट बाद में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ये एक्ट का नाम याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नाम चेंज किया गया, इसका थोड़ा सा एरिया चेंज किया गया, इसकी वर्किंग स्टाइल को चेंज किया गया। नाउ वी नो द नेम द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद होगा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, आप सुनते होंगे डे टू डे इन द न्यूज़ चैनल, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो सेंसेक्स रिप्रेजेंट द प्राइस इंडिकेटर फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, निफ्टी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। And what are the basic objective of the Bombay Stock Exchange? The first objective of the Bombay Stock Exchange to provide an efficient and transparent market for trading in securities. यानी इसका पहला काम होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट को, उसको एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करना। नंबर 2, टू प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना छोटी कंपनीज़ के लिए और मीडियम कंपनीज़ के लिए। नंबर 3, टू इंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफ गार्ड मार्केट इंटीग्रिटी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक लाइबल चेंजेस, यानी जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सेफ प्रोवाइड करना। सेफ प्रोवाइड करने का मतलब है कि ऑनलाइन किस तरह का कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, इसको लेकर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। Number 4, to provide other secure services like risk management, clearing settlement, market data and education to the market participant. It is a very important function of the Bombay Stock Exchange कि ये रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा फंड है तो आप ऐसे फ़ंड को इन्वेस्ट करो कि रिस्क वहाँ मिनिमम हो,
जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड, यानी अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए है, तो आप उस पैसे को एक साथ कहीं इन्वेस्ट ना करो, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। क्लियरिंग सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट में देरी हो रही है उस सेटलमेंट को जल्दी करने की कोशिश, मार्केट से रिलेटेड डाटा अगर आपको प्रोवाइड करना हो, या मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी एजुकेशन या कोई भी नॉलेज की ज़रूरत है, तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको हेल्प करता है। एज वेल एज द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू कन्फर्म द इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड, यानी कि जो इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड बने हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उसको फुलफिल करना। So they are the 5 important function of the Bombay Stock Exchange. The last para is the Bombay Stock Exchange was established BSC Institute Limited, which provide education and training regarding financial market to people seeking employment with a stock broker. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक BSc इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एक अलग से उसने इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पर जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर या इंटरमीडियरीज की रोल अपनाना चाहते हैं, तो वो इस इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेकर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ब्रोकर एज ए इंटरमीडियरीज काम कर सकते हैं। सो नाउ वी कंप्लीट all the topics related to chapter number 10, that is a financial market. Hope I will explain all the terms very clearly. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।